Hello guys and girls, welcome to the YouTube channel of Vishwas Rishant. As you all know, we are going to discuss the chapter 5 of the NCERT of the book Your Fundamentals of Physical Geography. The chapter 5 has a title Minerals and Rocks. So the name itself defines that there are two parts of this chapter. The one is the minerals and the other are rocks. And by the time we would be discussing the chapter, you would able to know that both of these things are connected. You might have also heard it of that rocks are composed of minerals. So we would be understanding that and some other things as well. And you all might be aware, if you are a viewer of this channel, that we discuss the chapter from the viewpoint of the competitive exams of UPSC as well as your class 11th. Fine. So it would be beneficial for both of the viewers who want to appear for the competitive exams of any of the competitive exams of the UPSC as well as your class 11. So the name of the chapter is Minerals and Rocks. Simply, one can say that it can be categorized, it can be divided into two parts. The first is minerals. I would elongate it, the reason being it requires a lot of chapter and I want to cover it in the single page, and we will be able to cover it. Minerals. So we are going to discuss the first thing, that is the minerals. First thing first, what is the meaning of the minerals? Then comes out to be the source of the minerals. Then we have to discuss the physical properties. After discussing the physical properties, let's discuss some major minerals which we usually found on the earth, in what quantity they are available, in what do they consist of, and the last, the types of minerals. The types of minerals. So starting with the meaning. Now, starting with a very basic thing, that Earth is comprised of many elements. बहुत सारे elements. Earth is comprised of many elements. So the second question comes out to be, sir, where are those elements? Where are those elements? Those elements can be found in the solid form, in the molten form, and the next thing you can guess, that you would found this in the outer layer and you would found in the inner layer. Now what we need to discuss is कि outer layer में कौन से तरह के elements होंगे. Inner layer, I don't think that we need to get into much of the inner layer. Neither the NCERT goes into it. The 98% of the crust, that is what we call the outer layer, comprises of majorly 8 elements. Now out of those 8 elements, the top 4 are the oxygen, silicon, aluminium, iron, and they are in the same order, the decreasing order. I'm repeating it again. Oxygen, silicon, aluminium, and iron. The rest of what is left of, that is 2%, comprises of hydrogen, comprises of titanium, comprises of phosphorus. So this is many elements in the solid part, in the outer layer, in the inner layer, and 98% of the crust or the outer layer comprises of 8 elements. Next,
these elements very rarely exist exclusively. Very rarely. What does this mean? अकेले नहीं रहते हैं ये. Then sir, these elements combines with other elements and hence form some substances. These substances are minerals. So once you will read the definition of mineral, you would found it is composed of two or more elements. Reverse कर लेते हैं. Composed of two or more elements. Why? Because these elements rarely exist exclusively. Sir, what are these elements? Beta, these elements are found in solid and molten form, in the outer layer and the inner layer. If I am talking about the outer layer, because we are talking about the surface wala part, so 98% of crust composed of 8 elements. You will find the list. The top 4 I have already known you. कैसे भी connect करो. The point is connectivity. Once you connect, it becomes easy. Coming on to the definition, they are naturally occurring inorganic. You have heard the name. The majority of them are inorganic, and they are naturally occurring. ना तुमने बनाए ना मैंने बनाए, nature ने बनाए. They have an orderly atomic structure. Yes, they have. I won't go into depth because this comes out to be the part of chemistry now. Then it has a definite chemical composition. Yes, they have. They have physical properties. That is why we have a topic to discuss over here, that we have physical properties of the minerals. And they are composed of two or more elements. That is what is written in the box. Simple. Now, there are more than 2,000 minerals. More than 2,000 minerals which have been identified in the crust. And 8% of them forms 8 elements out of them you can say constitutes of 8%, 98% of the crust. 2,000 minerals have been identified. It means there can be more. Yes, they can be more. But if I talk about a group of minerals, there are six major group of minerals. 6 major group. That is what we are going to discuss. Some major minerals. 6 major groups हैं. 6. Sorry, ये तो 5 हो गए. 6 major groups हैं. ठीक है? So उनको डिस्कस करना है, जिनको हम बोल देते हैं मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. So this comes out to be the, लिखना है तो लिख लो, क्या जरूरत है, कोई नहीं पूछने वाला. 2,000 minerals have been identified. There are some say ये भी लिखवा दो. अरे कहानी क्या लिखवानी है बेटा. 2,000 minerals have been identified, but 6 major minerals. 6 major minerals. Now these what we call major rock forming minerals. अच्छा. Rocks are formed out of minerals. Yes, rocks are formed out of minerals. ये तो पढ़ते आए हैं. जब मिनरल्स आपको यहां मिल रहे हैं, रॉक्स भी यहां मिल रहे हैं ऑब्वियसली, और सोर्स की जब मैं बात करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा. आ जाओ पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. सोर्स. Coming on to source. Hot magma in the interior of the earth is their basic source. Hot magma in the interior. This hot magma in the interior will solidify once it reaches somewhere near to the surface. It will solidify. How it will solidify? Through the process of crystallization, means it will form the crystals. छोटे छोटे कण बनाएगा जब solidify होगा hot magma. कण बनाएगा ना,
इसी तो रॉक टूट वाटर, छोटे छोटे कण बनाएगा, जब ये कण बनाएगा क्रिस्टल्स बनेंगे, इट विल फॉर्म द रॉक। सोर्स एंड नहीं बोल सकते, एग्जिस्टेंस इस वे में एग्जिस्ट करेंगे। कमिंग ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटर्नल से पता लग रहा है बाहर, क्रिस्टल से पता लग रहा है कि वो कैसे दिखेगी, उसकी शेप, फॉर्म। क्या मुश्किल है? स्टूडेंट्स आर क्राइंग, सर समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। याद करना ही नहीं है। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, whether it is cubic, whether it is the shape of prism, whether it is the shape of hexagonal, whatever. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? Obviously, it will depend upon the internal composition of the minerals. अंदर जो चीज है, अंदर वाली चीज से ही तो बाहर जो बनी है वो है। मिनरल से ही रॉक बना है, तो वो जो मिनरल या रॉक की जो शेप होगी या वो जो मिनरल की शेप होगी, वो ऑब्वियसली इंटरनल जो आपके पास अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उस पर डिपेंड करेगी। इंटरनल अरेंजमेंट पर भी तो पर ही तो शेप डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज क्लीवेज। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, फ्रैक्चर। वी नीड टू डिस्कस बोथ ऑफ देम टुगेदर। द रीजन बीइंग इज डिफरेंस में ही समझ आएंगे। If I break a rock, it broke into two parts. The inner surface would be plain, smooth, irregular नहीं होगा। Fracture irregular होगा। तो क्लीवेज क्या बोल रहा है कि आप उसको ऐसे तरीके से तोड़ रहे हो कि you are getting a relatively plain surface। बहुत सारे रॉक्स है, बहुत सारे रॉक्स है। आप छोटे टक में जब याद करोगे तो उस पर आपको याद आएगा। नाउ ये दोनों चीजें किस पर भी डिपेंड करती हैं? अगेन दे डिपेंड अपॉन द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि अंदर के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से बने हुए हैं, वो उसी तरीके से टूट रहे हैं और उसी तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। प्लेन है क्या इरेगुलर है, शेप कैसे है, डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल्स। ये किस पर डिपेंड करते हैं? मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। है क्या वो मैंने आपको बता दिया, रिलेटिवली प्लेन सरफेस once we break, relatively irregular surface once we break, cleavage and fracture. Then is luster भैया ये फोन लाया, इस पे ना ग्लॉसी वाला वो लगा दो। नहीं यार मैट लगवा, इस पे मैट अच्छा लगता है। मैट नहीं यार, मैट स्लिप होगा, ग्लॉसी चमकेगा, चमकने वाली लड़कियां लगवा। क्या है ये? आपने कलर की तो बात की नहीं, आप बोल रहे हो कि टच करने में कैसा है। लस्टर लगवाया होगा फोन पे। सो दैट इज अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विद रिगार्ड टू, विदाउट द रिगार्ड टू कलर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस। सिल्की है, ग्लॉसी है, मेटेलिक है, मैट जिसको बोलते हैं मैट। सो वो लस्टर, वो रॉक कैसा है? ग्लॉसी है, चमक रहा है, सिल्की है, मेटेलिक है, कैसा दिखता है? सो इट इज अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। अपीयरेंस, दिखता कैसा है, कलर की बात नहीं कर रहा हूं। विदाउट द रिगार्ड ऑफ कलर, विदाउट टेकिंग कलर इनटू कंसिडरेशन। देन द नेक्स्ट इज कलर। द नेक्स्ट इज कलर। नाउ कलर would depend upon two things. The first, the characteristics of their molecule structure, and the next is colored by impurities. अब कुछ impurities भी हो सकती हैं, उसके कारण उस पर कलर आया हो, लेकिन कुछ हो सकती है वो कलर अपने आप ही उसका ऐसा कलर हो। तो अगेन जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी पर कलर डिपेंड करेगा। अगेन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल। यहां पर अरेंजमेंट पर डिपेंड था, यहां पर मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड है।
मुद्दे की बात क्या है? मॉलिक्यूल। सर याद नहीं हो रहा है कि कौन सा किस पे डिपेंडेंट है। याद करना नहीं चाहते बेटा, प्रॉब्लम ये। चलो, द नेक्स्ट इज स्ट्रीक। स्ट्रीक। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपने एक पत्थर लिया, हार्ड सरफेस पे ऐसे करके चला दिया, स्ट्रीक। अब वो जो उसका पाउडर निकला है, पाउडर ही तो है वो पाउडर निकला है, क्या वो पाउडर रॉक के कलर से अलग है या रॉक के कलर जैसा ही है, मिनरल के कलर जैसा ही है? वो सेम कलर का भी हो सकता है, वो डिफरेंट कलर का भी हो सकता है। वो पता कैसे लगेगा आपको? उसको यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू वो पाउडर। तो वो चला कर देखते हैं यूजुअली किसी चीज पर, किसी रफ चीज पर, कि कलर सेम छोड़ रहा है वो रॉक, ये मिनरल, या अलग छोड़ रहा है। दैट इज स्ट्रीक। देन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, transparent, translucent, opaque. I don't think I need to discuss them. You might have already studied in your previous classes as well. Transparent, we can see clearly out of it. Translucent, इतना clear नहीं होगा, you can get a rough idea. Opaque, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो रॉक कैसा है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है। देन इज द स्ट्रक्चर। Now the structure depends upon two things. The first is grains, then the second is fibrous. Grains हैं तो कैसे हैं? फाइन ग्रेन है, मीडियम ग्रेन है, कोर्स ग्रेन है। फाइबरस है तो कैसा फाइबरस है? क्या वो फाइबर सेपरेबल है? क्या उसमें से फाइबर अलग अलग हो सकता है? देखोगे आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द स्ट्रक्चर कम्स आउट योर स्पेसिफिक हार्डनेस। हार्डनेस क्या बताऊं इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में? हार्डनेस के बेसिस पर आपके पास, मतलब अगर इफ यू वांट टू चेक द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल ऑफ द मिनरल, वी हैव 10 एलिमेंट्स, आई थिंक, यस 10 एलिमेंट्स। सबसे कम हार्ड, सबसे वीक टैल्क, सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड। ठीक है। अब आपके फिंगर नेल की बात करें, सो इट कम्स आउट टू बी 2.5, हार्डनेस के केस में 2.5। तो टैल्क के बाद जो एलिमेंट है उससे थोड़ा सा हार्ड, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट के बीच में। दिस इज द थिंग। ठीक है। सो हार्डनेस, इट इज रेजिस्टेंस, खुद को तोड़ने से रोकना, हार्डनेस। देन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज अ रेशियो। इट इज अ रेशियो। सर किसके किसके बीच में? इट इज अ रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मटेरियल, of the material or of the object, any mineral if you are taking into consideration, weight of the object, and which is, you can say, divided by weight of water of same volume। जो वॉल्यूम आपके रॉक की है उसके सेम वॉल्यूम जितना पानी ले लो, उसका वेट का रेशियो निकालो। होगा क्या? डेंसिटी पता लगेगी। इन अदर वर्ड्स, डेंसिटी ऑफ द रॉक एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है वो उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज द वेट इन एयर अपॉन डिफरेंस ऑफ वेट इन वाटर माइनस वेट इन एयर। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लग जाएगी। यहां पर आप कहीं ना कहीं डेंसिटी कंपेयर कर सकते हो कि वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है। मतलब
हाँ एरिया चेंज होने का कारण हो सकता है, तो आप इसकी डेंसिटी कंपेयर करते हो वाटर के रिस्पेक्ट में, दिस इज द रेफरेंस, वाटर के रिस्पेक्ट में इसका क्या वेट है, इसका क्या वेट है, इसका क्या वेट है, इसका क्या वेट है, तो आप वेट पता लगाओगे, ठीक है। फिर वेट का हवा में पता लगाओ, वेट का पानी में पता लगाओ, डिफरेंस करके आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लग जाएगी, ग्रेविटी का क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट, some major minerals. Some major minerals. The first major mineral is feldspar. Feldspar. Now, what you have to compare of all these things? मैं लिख देता हूं पहले, उसी के बेसिस पर कंपैरिजन करना है। द फर्स्ट थिंग ऑफ ऑल द मिनरल्स, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इट इज कंप्राइज्ड ऑफ। यू कैन फॉर्म अ टेबल रेदर, क्या क्या है उसके अंदर। देन वेटेज इन क्रस्ट, कि क्रस्ट का कितना पार्ट कवर करता है, वो कितने परसेंट कवर करता है। द थर्ड थिंग इज इन सम ऑफ द केसेस द कलर एंड ऑल्सो द यूसेज। यू कैन डिफरेंशिएट ऑल ऑफ द मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर। एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, टेबल बनाओ, एक साइड पर ये चार चीजें लिखो, ऊपर फेल्डस्पार लिखो, ऊपर क्वार्ट्ज लिखो, ऊपर ओलिविन लिखो, ऊपर माइका लिखो, ऊपर एम्फीबोल लिखो, खत्म। द प्रॉब्लम इज यू डोंट वांट टू मिक्स एनी ऑफ द एफर्ट्स। पढ़ने का तरीका चेंज करो, सब चेंज हो जाएगा, सब इजीली मिलेगा। जैसे लेट्स डू अ प्रैक्टिकल नाउ। फेल्डस्पार, I would only narrate this now. Feldspar comprises of mainly silicon and oxygen. What are the other elements? The other elements are sodium, potassium, calcium, aluminium. ये किसी specific में मिलता है. It comprises of 50% of the crust. It has a color of light green to salmon pink. Then usage, it is used in ceramics and glass making. फेल्डस्पार खत्म। नेक्स्ट, यहां पर लिख रहा हूं, नेक्स्ट इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, it is comprises of sand, granite and silica. It has 12% of weightage in crust. It has a color of white or colorless. And coming on to usage, it is used in radio and radar. Quartz khatam. The next is pyroxene. Pyroxene. Now these are in the, again, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा फेल्डस्पार, फिर क्वार्ट्ज, फिर यू हैव पायरोक्सिन। पायरोक्सिन कंप्राइजेस ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। वेटेज इन क्रस्ट 10%। कलर ग्रीन एंड ब्लैक। यूसेज नहीं दिया हुआ, कॉमनली फाउंड दिया हुआ, बस एक चीज नहीं अलग है, दैट इज इन मीटराइट्स, कॉमनली फाउंड इन मीटराइट्स, वो इसका अलग से लिख लेना। Other miscellaneous. Then amphibole. Amphibole comprises of aluminium, calcium, silica, iron and magnesium. 7% of the earth's crust. Green and black. Usage in asbestos industry. ये वो इंडस्ट्री है, ये एस्बेस्टॉस क्या है, वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर हीट रेसिस्टेंट फाइब्रस मटेरियल बनाया जाता है। सिलिकेट मिनरल होता है उसके अंदर, हीट रेसिस्टेंट होता है। ये आपको ब्रेक लाइनिंग में दिखेगा,
ये आपको और काफी सारी फायर रेसिस्टिंग चीजों में मिलेगा। इससे शेड भी बनाते हैं हम, शेड जो आपने कभी देखा हो, इस तरीके से शेड बनता है ना। फिर वो ऐसे जागता है पीछे। एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, दैट इज एम्फीवुड। कमिंग ऑन टू माइका, it comprises of potassium, aluminium, magnesium, iron and silica. 4% of the earth's crust. Color नहीं दिया हुआ. Usage is electrical instruments, mica. Next is olivine, and the last olivine. Olivine is comprises of magnesium, iron and silica. The color is green and it is used in jewelry part. एक और commonly found in basaltic rock. So दो एक ही पॉइंट है commonly found in pyroxene के केस में meteoroids और olivine के केस में you have अपना basaltic rock. बाकी सब same है. The point of differences are same. These are the 4 point of differences. Make a table, लिख लो. It's as simple as that. The point is you need to change the way of studying. Types of minerals. Now types of minerals, there can be 2 types. The first is metallic and the other is नॉन मेटेलिक. कौन से मिनरल्स में मेटल है और कौन से मिनरल्स में मेटल्स नहीं है. मेटेलिक विच कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटेलिक विच डज नॉट कंटेन मेटल्स. ठीक है, so, इसका तो सिंपल हो जाएगा. डज नॉट कंटेन मेटल, जैसे कि आपके पास सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स. कमिंग ऑन टू मेटेलिक. Now metallic can be further of 3 types. The one is precious metals if it has. Then ferrous iron वाला मेटल है और बचे हुए बाकी जिनमें आयरन नहीं है. प्रीशियस आप सबको पता ही है, आप सबके घर पे गोल्ड, सिल्वर. Then we have ferrous which have iron mixed in them. ठीक है. Then we have non-ferrous like copper, lead, zinc which don't have iron in them. Minerals वाला पार्ट खत्म. It is as simple as that. Now let's come to the rock part. Rock. Now when we talk of rock, we can discuss the rock part in 3 categories. The first is the meaning of rock. However, we have discussed a very good part of the meaning of rock. It is related with the mineral part. Then we have types of rock, and at third we have the rock cycle. Rock cycle. Coming on to the meaning. Now, rock is an aggregate of. It is an aggregate of one or more minerals. One or more minerals. And that is why the earth comprises of
या अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। सर ऐसे कैसे लिख दिया आप? अरे अभी तो डिस्कस करके आए, अर्थ हैज मेनी एलिमेंट्स, वो दो एलिमेंट साथ होते तो मिनरल बनते हैं, मिनरल से ही रॉक बनते हैं। आपने जब बोला कि अर्थ के क्रस्ट में एलिमेंट्स हैं, तो अर्थ क्रस्ट में फिर तो ही तो मैं बोल रहा हूँ कि रॉक्स हैं, मिनरल्स ही रॉक्स बने। ठीक है, नाउ जो रॉक्स हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे मिनरल्स हो सकते थे आपके पास, देयर कैन बी हार्डर रॉक, देयर कैन बी सॉफ्ट रॉक। ठीक है, एंड इट कैन हैव वेरिड कलर्स। अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स की हो सकती हैं तो इसकी भी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी कलर होगी। हार्डनेस हो सकती है तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी होगी। ठीक है, नाउ आउट ऑफ देम फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा रॉक में भी क्या मिलेगा? फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। रॉक में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा मिलेगा? फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, बिकॉज वी डिस्कस सम मेजर मिनरल्स। और फेल्डस्पार तो अर्थ के क्रस्ट में 50% है, क्वार्ट्ज 12% है, तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा रॉक में? मिनरल, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ रॉक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। The first is igneous, the second is sedimentary, and third is metamorphic. Igneous. Igneous comes out of the word ignis. Ignis means a Latin word that is fire. You might have heard of the word ignite, that is to light. Now what we can conclude out of this is that it comes out of magma or lava. When lava solidifies, when magma solidifies, it becomes an igneous rock. And that is why we call it as primary rock. Now, if the case is of solidification, कि सर solidify होता है. Now the solidification can happen either in the depth or either on the surface. जब आप डेप्थ में उस लावा की सॉलिडिफिकेशन कर रहे हो तो इट इज cooling down slowly. Here it is cooling down fastly, and that is the reason the one which is get solidifying in the depth have enough time to form the crystals, and that is why जो यहाँ पर क्रिस्टल्स बनेंगे उसका साइज क्या होगा? बड़ा, और यहाँ पर जो क्रिस्टल्स बनेंगे सरफेस वाले पार्ट में उनका साइज क्या होगा? स्मॉल. दे विल बी स्मूथ एंड स्मॉल, क्योंकि आपने क्रिस्टल्स बनने का ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया. एंड दिस इज हाउ igneous rocks gets differentiated on the basis of texture. Next is sedimentary. The name itself is telling us sedimentum, a Latin word, sedimentum, which means settling. Sediments, sedimentary, sedimentum, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Sedimentum is settling. अब ये sediments settle कैसे होंगे? Obviously they would be eroded from some part, transport करेंगे, फिर settle होंगे. ठीक है, नाउ अब ये करेगा कौन? डेन्यूटेशनल एजेंट्स. What is denutation? We would be discussing in the next chapter, but denutation comprises of weathering, erosion,
डिपोजिशन, इरोजन एंड डिपोजिशन, और एक चीज और है मास मूवमेंट, जिसको मास वेस्टिंग भी बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे होता क्या। सो ये डेनोटेशनल एजेंट्स में जो एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने में। अब जब इरोजन होगा, वेदरिंग होगी, ये सारी चीजें जब मूवमेंट होगी तो क्या बनेंगे? फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट बनेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना। फ्रेगमेंट्स को कौन क्या होगा? दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज। एक्सोजेनस सेम चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अभी के लिए शॉर्ट में बता देता हूं। एक्सोजेनस जो अर्थ के सरफेस पे काम कर रहे हैं एजेंट्स, यही एजेंट्स हैं एक्चुअली जो अर्थ के सरफेस पे काम कर रहे हैं। वो पानी है, वो हवा है, वो सी वाटर है, वो ग्लेशियर है, वो अंडरग्राउंड वाटर है। तो वो फ्रेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? एक्सोजेनिक एजेंसीज, ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोजेनस एजेंसी। एक्सो से पता लगता है एक्सट्रीम, अर्थ के सरफेस पे। एंडोजेनस होगा तो एंडो मींस इंटीरियर, एक्सोजेनिक एजेंसीज उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, वंस दे गेट ट्रांसपोर्टेड, दे गेट डिपॉजिटेड, अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन विल टेक प्लेस। नीचे पहले डिपोजिशन हुई, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, नीचे वाले पे वेट नहीं बढ़ गया, कॉम्पैक्ट नहीं होगा, कॉम्पैक्ट हो गया तो पत्थर बन गया। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन is known as lithification. Lith itself means rock, hard rock. ठीक है, अब होता क्या है कि सेडिमेंट्री के केस में जब एक एक करके वो लेयर डिपॉजिट हुई तो यूजुअली जब वो कॉम्पैक्ट होगा तो आपको उसके अंदर लेयर दिखेगी। कोई लेयर, कोई टाइप ऑफ रॉक अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिटेन करके रखे तो वो लेयर में दिखेगा आपको। सेडिमेंट्री रॉक्स के केस में आपको लेयर्स दिख सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट, द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। देयर कैन बी 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज मैकेनिकल, ठीक है। द सेकेंड इज ऑर्गेनिकल, and the third is chemical. However, NCERT does not define कि किस तरीके से बने हैं, क्या क्या है। The NCERT only mentions about their examples, but हम थोड़ा सा इसको टच कर लेते हैं। मैकेनिकल, जो आपने समझा कॉम्पैक्शन वाला तरीका, दैट इज मैकेनिकल। उस केस में आपके पास लाइमस्टोन होगा, उस केस में आपके पास सैंडस्टोन होगा, कॉन्ग्लोमरेट होगा। Organical, which comprises of organic matter, fossils specifically, ठीक है। उसमें क्या होगा? चॉक होगा, लाइमस्टोन होगा, कोल होगा। लाइमस्टोन को हम बायोकेमिकल भी बोल देते हैं, टाइप ऑफ। देन सिर्फ केमिकली, आपने छोटे होते यू माइट हैव प्लेड विद मिट्टी, गिल्ली मिट्टी। उस गिल्ली मिट्टी के साथ जब आप खेलते होगे, आपने उसको छोड़ दिया, अगले दिन आए, पानी जा चुका है उसमें से, पानी इवेपोरेट हो चुका है और पीछे से वो पत्थर बन गया, थोड़ा सा हार्ड नहीं, सॉफ्ट पत्थर बन गया। केमिकल, व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स आउट ऑफ एनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा? कोई ना कोई मिनरल होगा। वो जब पानी चला जाएगा वो मिनरल इकट्ठा हो जाएगा, रॉक बन जाएगा। एंड दिस इज लाइमस्टोन, चर्ट एंड हेलाइट। सो दिस इज हाउ द 3 टाइप्स ऑफ sedimentary rocks can be formed. Then is metamorphic. When I'm talking about metamorphic, it comes out of the term metamorphism. Metamorphism is the change of form. Change of form. Form change कर देना किसी रॉक की। अब ये फॉर्म चेंज किस कारण से हो सकती है? प्रेशर के चेंज के कारण, वॉल्यूम के चेंज के कारण, टेम्परेचर के चेंज के कारण। इन तीनों का एक्शन होना चाहिए। एक साथ हो जाए, किसी अकेले का हो जाए तो वो दूसरे बाकी अपना हो जाएगा। ठीक है। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक के केस में
जो ये प्रोसेस है, जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स पर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स पर उनका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन of the already existing rocks, reorganization of materials. That is what I've written. Change of form. किसके कारण? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण आपका चेंज इन फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट, the types of metamorphism. There can be two types of metamorphism. The one is dynamic and the other is thermal. नाम से पता लग रहा है पहले तो कि ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है, एंड इसमें हो सकता है टेम्परेचर को कोई खास बड़ा कंट्रीब्यूशन ना हो. ठीक है. अब होगा क्या? ऑब्वियसली दिस इज मैकेनिकल, ये मैकेनिकल चेंजेस है, ये मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन है. ठीक है. नाउ इसके केस में, डायनामिक के केस में व्हाट वुड हैपन? द रीऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू ब्रेकिंग और क्रशिंग. रीऑर्गेनाइजेशन तो होनी है. द रीजन इज रीऑर्गेनाइजेशन, मेटामॉर्फिक, ड्यू टू क्रशिंग. रीऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू क्रशिंग और ब्रेकिंग. अब जब ये होगा, क्या इसमें केमिकल चेंजेस होंगे? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन थर्मल में आप मैकेनिकल प्रोसेस नहीं कर रहे हो. थर्मल में आप केमिकली चीजों को चेंज कर रहे हो, आप टेम्परेचर चेंज करके कर रहे हो. सो इट विल ऑल्टर केमिकली, सो देयर विल बी केमिकल चेंजेस. रिक्रिस्टलाइजेशन, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन है. अब जो रिक्रिस्टलाइजेशन है, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रशिंग के कारण होगा. इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन किस कारण से होगा? इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन किस कारण से हो सकता है? दो तरीके से. एक कॉन्टैक्ट, एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म से. एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक रीजनल. कॉन्टैक्ट, दिस इज अ वेंट फ्रॉम वेयर द मैग्मा इज कमिंग आउट. इसके साइड पर यहां पर रॉक है. ये रॉक किसके कांटेक्ट में है? मैग्मा के. रॉक मैग्मा के कांटेक्ट में, टेम्परेचर का चेंज हो गया. रीजन, कहीं पर प्लेट टेक्टोनिक सबडक्शन कर रही है, प्रेशर बढ़ गया उस रीजन में. प्रेशर बढ़ गया, रिजल्टिंग टेम्परेचर बढ़ गया. तो उस रीजन में मेटामॉर्फिज्म हो गया पूरा. उस रीजन में ही थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो गया, पूरा टेम्परेचर बढ़ गया. ठीक है. सो दिस इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड डायनामिक मेटामॉर्फिज्म. नाउ होता क्या है कि व्हेन द मेटामॉर्फिज्म हैपेंस, तो मेटामॉर्फिज्म के केस में कभी कभी लेयर्स भी देखने को मिल जाती हैं आपको. जो ग्रेन्स हैं, जो उसके मिनरल्स हैं, वो कभी कभी स्पेसिफिक लेयर में सेटल हो जाते हैं. इस प्रोसेस को, इस लेयर्स के प्रोसेस में सेटल होने को हम बोलते हैं फॉलिएशन और लीनिएशन. फॉलिएशन और लीनिएशन. कि वो अब मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्निस की तरह तो नहीं है कि मैग्मा ठंडा होगा और उसमें लेयर्स नहीं दिखेंगे. ऑब्वियसली वो किसी प्रेशर में आकर, टेम्परेचर के चेंज में अब कुछ ग्रेन्स अपना कैरेक्टरिस्टिक रिटेन कर लेते हैं, तो वो आपको लेयर्स में दिख सकते हैं कभी कभी. इस प्रोसेस को फॉलिएशन और लीनिएशन बोलते हैं. इनको बैंड्स भी बोल देते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ होते हैं, अलग अलग टाइप के रॉक में मेटामॉर्फिज्म हुआ है, तो उसने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया है, तो उसी फॉलिएशन और लीनिएशन के बाद वो बैंड्स दिखते हैं आपको, लेयर्स दिखती हैं, बैंड्स. उनको बैंडेड रॉक्स बोलते हैं, बैंडेड रॉक्स. ठीक है. तो उसमें आपको बैंडिंग दिखेगी, बैंडिंग. कहीं पर डार्क कलर, कहीं पर थोड़ा सा लाइट कलर, फिर थोड़ा सा और लाइट, फिर डार्क.
क्योंकि वो पुराने एग्जिस्टिंग रॉक से बने हैं। कौन सा पार्ट किस तरीके से रिएक्ट किया है दैट टोटली डिपेंड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से ओरिजिनल रॉक्स कैसे हैं, ओरिजिनल रॉक्स, उसके बेसिस पर आपके पास जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। कि ओरिजिनल रॉक कैसे थे, वो दो टाइप के हो सकते हैं कि क्या वो लेयर्स बना रहे हैं, हाँ जी फॉलिएटेड, क्या वो लेयर्स नहीं बना रहे, नहीं बना रहे जी नॉन फॉलिएटेड, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल रॉक, ओरिजिनल रॉक। और वो ओरिजिनल रॉक मेटामॉर्फिज्म किया है, उसमें मेटामॉर्फिज्म हुआ इस तरीके। नेक्स्ट, रॉक साइकिल। ना रॉक साइकिल कहता है कि कोई भी रॉक डज नॉट रिमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, द फॉर्म विल कीप ऑन चेंजिंग, विल कीप ऑन चेंजिंग। वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं रहेगी, इट विल अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन एनी हाउ, इट इज एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखना कैसे, let's say here is the magma, the magma changes into igneous rock, the igneous rock can change into sediment, this sediment can form a sedimentary rock. ये sedimentary rock can change into metamorphic rock, and this metamorphic rock can further change into magma. होगा कैसे? मैग्मा से igneous rock, the process is solidification. Igneous is sediment, the process is weathering and erosion. Sediment से sedimentary rock, the process is lithification. Sedimentary से metamorphic rock, the process is metamorphism. Metamorphic rock से magma, the process is melting. ग्रीन कलर में सारे प्रोसेसेस हैं। सॉर्टेड, आगे चलते हैं। मैग्मा कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ सेडिमेंट्री रॉक कैन फर्दर चेंज इनटू सेडिमेंट, प्रोसेस lithification. Sorry, the process is weathering and erosion. Metamorphic rock can change into sediment, weathering and erosion. ठीक है, then sedimentary rock can directly melt, तो वो मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ये गलत बना दिया, मैग्मा से मेटामॉर्फिक नहीं आना था, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक आना था। मैग्मा से कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा बताओ। अच्छा,
igneous से मेटामॉर्फिक रॉक. The process is metamorphism. Sedimentary मेल्ट हो जाएगा, मैग्मा बन जाएगा. सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट बन जाएंगे. इग्नियस रॉक सेडिमेंट बन सकते हैं लिथिफिकेशन से. Sorted? What else is left? I think it's done. But I am having a doubt that something is left. One more arrow is left. Sedimentary to sediment. Magma से sediment, no. Metamorphism, sediment, sedimentary rock. Oh yes. Igneous rock can itself melt. तो मैग्मा बन के वापस इग्नियस बन जाएगा, सॉलिडिफिकेशन अगर हो जाएगी. सिंपल. So it means it is a continuous process. It means it do not remain in original form. It will keep on changing. Rock cycle. ये. This is as simple as that. ठीक है. So वो मैंने सारे प्रोसेस लिख दिए, एरो बता दिए कौन सा किस तरीके से कैसे रिलेटेड है. सो दिस इज योर चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक्स. I know you won't be able to see it, but still, here comes out the chapter. एक ही डायग्राम में आप दो बना लो, मिनरल्स का अलग बना लो, रॉक्स का अलग बना लो. बनाने की जरूरत नहीं है. Once you listen to this lecture carefully, just go and read the NCERT. It will be a cakewalk. Fine? So that's all for this lecture. See you in the next lecture. By then, take care.